So guys, today we are going to start equations reducible to pair of linear equations. So let's start the session. So guys, let's see what is the equations reducible to pair of linear equation. It is the 3.6 of your NCERT book, and from this topic I will complete my chapter number 3. I will be completed it. Okay, so let's look at here. यहाँ पे आपने जैसे देखा है इस पैटर्न ऑफ इक्वेशन को, तो आपने बोला मैम, जैसे आपने बोला था दैट x शुड बी हैविंग पावर 1 एंड y शुड आल्सो हैव पावर 1, तो यहाँ पे तो है पावर 1, पर आप देखो आपका जो x और y है इट इज इन द डिनोमिनेटर. Yes, it is in the denominator, it is not in the numerator. And जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, मैंने अभी आप लोग को दिखाया था a1x b1y, तो x y सब कहाँ होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, बॉटम में नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. तो कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखाई देंगे तो दीज आर द क्वेश्चन जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में. ठीक है. इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ, बट वी कैन कन्वर्ट इट, वी कैन मेक इट रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, सो लेट्स डू. आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस क्वेश्चन. यू कैन सी दैट 1/x 1/x 1/y एंड 1/y इज इन बोथ ऑफ द इक्वेशन. और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके 10th बोर्ड में या आपके 10th क्लास में, तो आपको ये 1/x और ये जो 1/y है वो दोनों में कॉमन ही दिखाई देगा. ऐसा नहीं कि किसी में 1/x लिखा है तो दूसरे वाले में 1/√x लिख गया है, वो कॉमन ही दिखता रहेगा. तो आपका स्टेप 1 ये कहता है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, स्टेप 1 इज let 1/x is equals to p and 1/y is equals to q. आपने एक दूसरा ही वेरिएबल उसके लिए लेट कर लिया है. Now just put this value over here. So it will be, my equation number 1 will be p/2 plus of q/3 is equals to 2. Okay, I'm simplifying it. 2 3s are 6. It will be 3p, it will be 2q and it is 2. So it is 3p plus of 2q is equals to 12. Or more you can do, minus 12 is equals to 0. So it is my equation number 1. Now equation number 2, p/3 plus of q/2 is equals to 13/6. ठीक है. मैंने बस क्या किया है, इस 1/x की जगह पे p रख दिया है. So it will be p/3 q/2 is equals to 13/6. Now 3 and 2 का LCM will be 6 and it is 2p plus of 3q is equals to 13/6. This 6 and 6 get cancelled out and it is 2p plus of 3q is equals to 13. It is my equation number 2. Now you can see equation number 1 and 2 is exactly in the form of pair of linear equation. You can see equation number 1 and equation number 2 is exactly in the form of pair of linear equation. Now just check that the solution of this equation will exist or not. So a1 by a2 and b1/b2, you can see these two values are not equal. The ratio of a1/a2 and b1 and b2 are not equal. It means the lines are intersecting. It means the lines are intersecting and solution is possible. Yes, solution exists. ठीक है. By finding out the equations or by reduce the equation in the standard format, you can use any of the method to solve this equation. So I'm using elimination over here. ठीक है. So मैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए I'm using elimination. Now elimination में क्या करते थे, याद करो सब लोग. हम क्या करते थे, हम पहले कोफिशिएंट सेम करते थे. सो हम मल्टीप्लाइंग 1 into 2 and equation number 2 into 3. आई एम मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ p as सेम. ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, it will be 6p plus of 2 into 2 will be 4q and it is 24. And this will be equation number 2 into 3. This will be 6p plus of 9q is equals to 13 3s are 39. माइनस माइनस माइनस. मैंने बोला था जब दोनों में सिमिलर साइन होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है और ऑपोजिट साइन होता है तो एडिशन होता है. You can see that this and this get cancelled out. Minus 9q plus 4q will be minus of 5q and 39 and 24 ऐसे माइनस करोगे ना, बट माइनस यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी and it will be 15. So it is minus of 15. So value of q will be minus and minus get plus and 15/5 is equals to 3. The value of q will be 3. Now just put this value of q in any of the equation. I'm putting this value of q in equation number 1. ठीक है. Put q is equals to 3 in equation number 1.
So it will be 3p plus of 2 into 3 is equals to 12. 3p plus of 6 is equals to 12. 3p will be 6 and p is equals to 6 by 3 is equals to 2. Now you can see that I got the value of q and p which is 3 and 2. But क्या मेरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ p and q था? नहीं, मुझे तो वैसा क्वेश्चन ही नहीं दिया गया था. मेरा क्वेश्चन था इज इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, राइट? और मुझे x और y की ही वैल्यू निकालनी थी. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा. जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू. q को आपने कितना लिया था, मतलब 1 by y को आपने कितना लिया था, q. So just put 1 by y over here. 1 by y is equals to 3. So y will be equals to 1 by 3. ये आपका आंसर हुआ y का, y की वैल्यू मतलब. And what is the value of p? 1 by x. So 1 by x is equals to 2. So x will be equals to 1 by 2. ये हुई आपकी x की वैल्यू. तो आपको p और q तक ला करके आपको आंसर नहीं लिखना है, बिकॉज आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो दीज टू विल बी द आंसर. ठीक है, ये था एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपने क्या किया था, आपको ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिख रहा था, आपने यहाँ और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज किया. उसके बाद आप उसका सोल्यूशन किसी भी मेथड से ला सकते हैं. हियर आई हैव यूज्ड एलिमिनेशन मेथड. ओके, एक दो क्वेश्चन की वैरायटी में आप लोग को और दिखाती हूँ उसको कैसे करना है. ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में. See, here I have taken two different kind of question, which is the part of equations reducible to pair of linear equation. आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो pair of linear equation जैसा दिख ही नहीं रहा है. तो करते हैं अभी, है ना? कैसे लेट करेंगे मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न बता रही हूँ, बाकी सोल्यूशन वैसा ही होगा जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. इसके लिए हिंट देखिए. Here you can see 1 by root x, 1 by root x, 1 by root y, 1 by root y. So just let 1 by root x is equals to p and 1 by root y is equals to q. So it will be 2p plus of 3q is equals to 2, equation number 1, and it is 4p minus of 9q is equals to minus 1, equation number 2. Okay, I'm again using elimination method to solve these two equations. So I'm multiplying 2 over here. In equation number 1 I'm multiplying 2 because I want to make coefficient of p as equal. So क्या हो जाएगा ये, it will become 4, 2 into 3 it will become 6 and 2 into 2 it will become 4. So this is my new equation. This is my new equation. Just use elimination. I'm changing the sign of p, minus plus, and ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस. ठीक है, साइन चेंज होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन. क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जिनका कोफिशिएंट हमने सेम किया है उन दोनों के साइन में डिफरेंस नहीं था, सेम साइन था दोनों के पास में. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सब्ट्रैक्शन. और आपको पता है जब मैं सब्ट्रैक्शन यूज करती हूँ तो ये साइंस चेंज होते हैं. मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में ब्रैकेट में करके दिखाया था वो. ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड आउट. 9q plus 6q will be 15q and it will be 5. So value of q will be 5 by 15. So it is 1 by 3. But आपको q की वैल्यू नहीं चाहिए थी, आपको वैल्यू चाहिए थी y की. So I'm just replacing q with 1 by root y. It will be 1 by root y. It is 1 by 3. You can see that here it is root but here it is a normal value. So I'm squaring both sides. Why so that my y will become normal y. Okay, so it will be 1 by y and it is 1 by 9. What I did, I'm squaring both side. Squaring both side. ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख गया कि y की वैल्यू इज नथिंग बट y की वैल्यू इज 9. ठीक, बस आपको कुछ नहीं करना है. अब इस y की वैल्यू को, ये जो 9 आई है, सॉरी पहले इस q की वैल्यू को जो 1 by 3 आई है, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आइदर 1 में और 2 में. 1 का जो ओरिजिनल इक्वेशन था, ठीक है, उसके बाद आप सेम ये प्रोसेस जो है वो x के लिए भी परफॉर्म करेंगे. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आपको यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ा है. ठीक है, आप x की वैल्यू निकालिए, मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कीजिए कि मैम x की वैल्यू ये है. ठीक है, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं अपना आंसर. ठीक है, सो दैट मेरे को समझ में आ जाए कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे हैं. ओके, नाउ आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन, आई एम डिस्कसिंग दिस वन. These are the patterns only. ठीक है, प्रोसेस सबका सेम है, पैटर्न्स बस अलग हैं. Here you can see that it is common. It is sorry,
इट इज कॉमन. बट अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ x और सिर्फ y नहीं है, x और y का कॉम्बिनेशन यूज हुआ है. गेट इट? तो अब क्या करेंगे अपन, जस्ट लुक एट हियर, आई एम जस्ट लेट 3x plus y is equals to p and 1 by 3x plus y is equals to p and 1 by 3x minus y is equals to q. ठीक है, just replace the values. So equation number 1 will be p plus q is equals to 3 by 4, equation number 1, and p by 2 minus of q by 2 is equals to minus of 1 by 8. ठीक है, if I am not wrong, this is only the question. ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, आप एलसीएम निकालिए 2, इट विल बी p माइनस ऑफ q, इट इज माइनस 1 by 8, 2 1s are 2 4s are, so p minus of q is equals to minus 1 by 4. It is my equation number 2. Now you can see that I have reduced this equation in pair of linear equation. ठीक है, आपने देख लिया कि q के कोफिशिएंट सेम हैं और उनके साइन चेंज हैं. मैं फिर से एलिमिनेशन परफॉर्म करूंगी, बट यहाँ पे हम एडिशन करेंगे क्यों, क्योंकि q के कोफिशिएंट सेम है ऑलरेडी, वो वाला स्टेप हम स्किप कर दिए, और हमारा साइन डिफरेंट है तो हम इसको ऐड करते हैं. ठीक है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2. So it will be p plus q is equals to 3 by 4 and p minus of q is equals to minus 1 by 4. I'm just adding both the equations. So this and this cancelled out, 2p. It is 3 by 4 minus of 1 by 4 will be 2 by 4. इसका मतलब कितना आ गया, 1 by 2. So value of p is 1 by 4. ये 2 जो है यहाँ पे आ गया, so it will be 1 by 4. ठीक है, बट मेरे को वैल्यू ऑफ p नहीं फाइंड आउट करना था, मेरे को फाइंड आउट करना है x एंड y. तो पहले ये p आ गया, अब यहीं से मैं q भी फाइंड आउट कर लेती हूँ. पुट दिस वैल्यू ऑफ p ओवर इक्वेशन नंबर 1. इन इक्वेशन 1 I'm just putting the value, so it will be 1 by 4, q 3 by 4, ये वाली इक्वेशन में. So q is equals to 3 by 4 minus of 1 by 4, so it is 2 by 4 and value of q is 1 by 2. Value of q is 1 by 2. तो आपने देखा कि ये बस p और q की वैल्यू आई है, अभी मेरा इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ है. What was the value of p? It was 1 by 3x plus y. So I'm putting here 1 by 3x plus y is equals to 1 by 4. तो 3x plus y will be 4. रेसिप्रोकल है दोनों, 1 by 1 by, तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1. एंड वैल्यू ऑफ q इज 3x minus y, तो 1 by 3x minus y. 1 by 3x minus y is equals to 1 by 2. So 3x minus of y is equals to 2. It is my equation number 2. I mean 3 and 4. अब देखिए ये अपने टाइप का एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको p और q की वैल्यू रखने के बाद x और y डायरेक्टली नहीं मिल रहा है. You need to solve these two equations also. So it will be, you can see that I can add these two equations. Why so? Because y और y के कोफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन चेंज है. तो I'm adding equation number 3 with the 4. So it will be 3x plus y plus of 3x minus of y, 4 plus 2. This and this get cancelled out. 6x is equals to 6 and value of x will be 1. ठीक है, ये value of x कितनी आ गई, 1. This is my answer. And just put this value of x in any of the equation and you will get value of y. तो अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो कितना हो जाएगा, 3 into 1 will be 1, y is equals to 1. So value of y will be 1. ठीक है, यहाँ भी हमने एलिमिनेशन ही लगाया है, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको 2 times एलिमिनेशन यूज करना हुआ. यहाँ पे एक बार मैंने एलिमिनेशन लगाया फॉर 3 plus 4, इक्वेशन नंबर 3 plus 4, एंड एक बार कहाँ पे एलिमिनेशन लगाया था, यहाँ पे लगाया था. ठीक है, यहाँ पे एक बार एलिमिनेशन लगाया है. तो जब भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा होगा तो आपको 2 टाइम सॉल्व करना होगा. आपने देखा मैंने एलिमिनेशन 2 बार फॉर्म किया है. वाई सो आपके p और q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y आई, इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y नहीं आई, इन टर्म्स ऑफ x एंड y आई. ठीक है, तो गाइज दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम इंट्रो टू इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर नहीं समझ में आई है तो यू कैन डू कमेंट, यू कैन मेल मी योर डाउट्स. ठीक है, एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखें, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द वेरी न्यू कंसेप्ट. तब तक के लिए थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.